Morning students. Now today I'm going to start a new chapter with you, that is death of a partner. Partnership may end with the death of a partner, but firm may continue its business with the remaining partners. So it is up to the partners whether in which ratio they want to take the share of the deceased partner, either in their old ratio or in a new ratio. Now what are the adjustments? Adjustments are almost same like retirement, only treatment of profit is little different. So let us very quickly have a revision of the retirement chapter, which is totally related with this. After this video today you are going to solve till sum number 22. I am going to cover that. First is change in profit sharing ratio adjustment. You know here what you have to do in change in profit sharing ratio. How to calculate new profit sharing ratio, existing share of the old partner plus profit share of the deceased partner. Disease मतलब जो मर गया, ठीक है, जो गुजर गया, deceased. Next is gaining ratio. Gaining ratio means new share minus old share. And rest entries are same as it is in rest of the methods are same as it was in retirement. What is a share? Half share is taken, full share is taken, in ratio is taken, in old ratio is taken. So all the treatments are same as retirement. So you have to solve the sum on your own. So it will be a kind of revision also. Okay, change in ratio. Next is treatment or adjustment of goodwill. How you are going to value goodwill? That is also same. Value of firm, what goodwill will be given? You will multiply it with the value with the share of the deceased partner, profit share of the deceased partner. You are going to get share of deceased partner in goodwill. Then your entry, remaining partners capital account debit to deceased partners capital account, in which ratio? In gaining ratio. If goodwill is already existing in the book, then you will write off. Your entry will be capital partners capital account debit to goodwill account in old ratio. Other treatments of goodwill are same. Hidden goodwill and all, if it is in the question, they will be same as it was in retirement. Next is revaluation of assets and liabilities. In this also you will be asked to prepare revaluation account. You are very much familiar, you have done it in last two chapters. Increase in assets, increase in liability, your entry is asset account debit, liability account debit to revaluation account. Decrease in asset and increase in liabilities, revaluation account debit to asset or liability account. Profits you will transfer to partners capital account, loss reverse entry. Treatment of accumulated reserves, profit and loss, general reserve account debit, profit and loss credit balance account debit to all partners capital account in old ratio if it is given. Here comes a new topic for you. Calculation of profit of a deceased partner, means the one who passed away, what is his share in the profit. Up to the your question is, you can say, ma'am, in old ratio we will distribute. No, because death is uncertain till he is not dying at the end of the accounting year, he is dying in the middle. So till the date, from the accounting year till the date of his death, you have to calculate his share of profit. Is it clear? जिस दिन बेटा आपका अकाउंटिंग पीरियड शुरू हुआ है, न्यू अकाउंटिंग ईयर, उससे लेकर जहाँ उनकी डेथ होती है वहाँ तक के टाइम के लिए उनका शेयर कितना था प्रॉफिट में, ये आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना है. ये अब डिफरेंट है, ये अब नया है. देखो कैसे होगा. डिजीज पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ. ठीक है, जब अकाउंटिंग ईयर शुरू हो गया तब से उनकी डेथ तक ही इज़. सिमिलरली अगर लॉस हो गया उनके लिए भी वो लाइबल है. तो अब इनमें जर्नल एंट्रीज पहले सीख लो, फिर मैं कैलकुलेशन बता रही हूँ उनकी. इफ़ रेशियो डज नॉट चेंज, अगर वो पार्टनर्स कहते हैं कि हम ओल्ड रेशियो में ही शेयर करेंगे, तो आपने ये एंट्री डाल देनी है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और अगर लॉस हो तो डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है ये आप शो करोगे एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, एंड इसको ट्रांसफ़र करोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एट द एंड ऑफ द ईयर. ठीक है, मतलब आप लोग यहाँ तक याद रखो कि बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करेंगे P&L सस्पेंस. ठीक है, अगर वो रेशियो चेंज नहीं करते
अब इसमें देखो कैसे आपने कैलकुलेट करने हैं प्रॉफिट्स। इसमें फर्स्ट मेथड है कि व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो देखो मेरी इलस्ट्रेशन, आर डी एंड के आर पार्टनर्स, रेशियो है 3:2:1। डी डाइड ऑन 30th जून, ये अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को। प्रॉफिट है 3,60,000। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डीज अकाउंट, जो डेथ हो रही है डी की, डीज कैपिटल अकाउंट। कितना है बेटा, 3,60,000 को उनकी रेशियो, डी की रेशियो कितनी है 2/6 मल्टीप्लाई अप्रैल से लेकर 30 जून तक 3 मंथ्स 3/12। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ठीक है, और यहाँ पे तो उन्होंने सीधा मेंशन कर दिया कि प्रॉफिट वाज 3,60,000। कई बार आपको एवरेज प्रॉफिट्स भी कैलकुलेट करने पड़ जाते हैं जब 4 या 5 साल दिए हुए हों और वो कहें कि एवरेज प्रॉफिट के बेस पे कैलकुलेट करो उसका शेयर। ठीक है, सेकंड, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो चेंज कर लेते हैं, ठीक है, तब एंट्रीज क्या होंगी ये देखो। ए बी सी पार्टनर है, उनकी रेशियो है बेटा 3:2:1। बी 30 जून को डाई कर गए, लॉस है 1,80,000 का। ए एंड बी की न्यू रेशियो है 3:2। कहाँ उनकी रेशियो थी 3:1, पर उनकी न्यू रेशियो है 3:2। तो सबसे पहले जो आपने लॉस की रिवर्स एंट्री डालनी वो क्या है, बीज कैपिटल अकाउंट टू P&L सस्पेंस 60,000। उन्होंने 1,80,000 टिल डेट ही कह दिया है, तो यहाँ पे हमने टाइम नहीं लगाना, सीधा उनका शेयर निकाल लेना है 2/6 करके। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा करना, ओके। नेक्स्ट, अब इस P&L सस्पेंस को ट्रांसफ़र कर दो एग्जिस्टिंग पार्टनर के रेशियो कैपिटल अकाउंट में। कौन सी रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। देखो P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट इन गेनिंग रेशियो। ठीक है, ये तो है आपके जब आप 2 एंट्रीज पास कर रहे हो। अगर आपको ये समझ आ गया वेल एंड गुड है कि उन्होंने रेशियो चेंज की है। पहले मैं उसे P&L सस्पेंस टू डिजीज़ पार्टनर डाल दूंगा इन केस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में रिवर्स एंट्री, और दूसरा जो अमाउंट है उसको एग्जिस्टिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। ये तो एक है। अब इसका दूसरा तरीका क्या है करने का, दूसरी एंट्री क्या है, डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन गेनिंग रेशियो। ये ज़्यादा इजी है कि जो चले गए हैं उनका अकाउंट डेबिट टू दूसरों का क्रेडिट। ठीक है, आगे तो लास्ट में मैंने आपको समझाया था एस्टिमेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। दिस टॉपिक नाउ सेकेंड मेथड इज एस्टिमेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेल। क्वेश्चन में समटाइम दे कैन गिव यू सेल, तो आपने सेल के बेसिस पे प्रॉफिट्स निकालने हैं। देखो कैसे निकलेंगे, ये इलस्ट्रेशन से क्लियर हो जाएगा आपको। ए इज़ टू बी इज़ टू सी, उनकी रेशियो है 2:2:1। सेल्स 31 मार्च को है 3 लाख। सेल 1 अप्रैल से लेकर 30 जून को है 1 लाख। तो पहले आपने, और प्रॉफिट 31 मार्च को था 30,000, तो पहले आप रेट ऑफ प्रॉफिट निकाल लो कि मेरे प्रॉफिट कितने हैं। 30,000 अपॉन सेल मल्टीप्लाई 100, ये फॉर्मूला है। तो 10% आपका प्रॉफिट का रेट आ गया। तो सेल्स अप्रैल से लेकर जून, मतलब उसकी डेथ तक 1 लाख की थी, और 1 लाख पर 10% आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना प्रॉफिट बन गया 10,000। और 10,000 में डिजीज़ पार्टनर का शेयर कितना है 4,000। एक बार फिर से समझो, नई चीज़ थी आपके लिए। सबसे पहले देखो ये आपको बताएंगे कि सेल्स हमारी लास्ट ईयर कितनी थी। फिर उन्होंने बताया कि सेल्स इस ईयर जब तक पार्टनर की डेथ हुई है तब तक कितनी थी। फिर उन्होंने कहा कि हमारे प्रॉफिट्स लास्ट ईयर 30,000 थे। 30 लाख की सेल पे 30,000 प्रॉफिट, मतलब 10% मेरा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो इतने टाइम गैप में, 3 महीनों के गैप में भी मेरा प्रॉफिट 10% ही होगा कि पिछले साल हुआ, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। तो 1 लाख पे 10% प्रॉफिट मेरा कितना बन गया 10,000। और उस 10,000 को मैंने कौन सी रेशियो में बांटे, वो 10,000 पूरी फर्म का प्रॉफिट था। डिजीज़ पार्टनर जो गुजर गए हैं उनका शेयर कितना है, उनका शेयर है 2/5, मतलब 4,000। So this was all about profits in death of partner. You have to solve till sum number 22. In this all the discussed points are there.
So solve them properly and tell me your problems. I'm always here to help you. Thank you.